Okay. Uh, so I think in last lecture we already completed this part. Okay, we have introduced the different types of matrix. Okay, also we have discussed their definitions. Okay, so symmetric, skew symmetric, diagonal, scalar, unit, upper triangular, lower triangular, singular, non-singular, and I think we have also discussed the elementary transformation. Yes, whether we have completed this part, elementary transformation. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So these are the operations that we can perform on a matrix. And the next part is submatrix. By deleting some rows or some columns, whatever result is there, that we call it as submatrix, or we also call it as equivalent matrix. So the submatrix and equivalent matrix, both definition are similar. Okay. So two matrix A and B are said to be equivalent if equivalent means after performing a limited transformation. Sorry for that. Submatrix is just a matrix which is obtained by deleting some rows or columns. Okay, then we call it as submatrix. And what is equivalent matrix? Equivalent matrix is the matrix which is obtained by performing some elementary transformation. Okay, so the result of elementary transformation is the equivalent matrix. The result of elementary transformation is the equivalent matrix. ठीक है, ये बस एक डेफिनेशन है, वैसे कुछ ज़्यादा यूज नहीं करना है. Okay. Now, and we are here at this point. So now I can define the concept like minor of order R. Okay, तो ये सबसे important part है to understand what is the meaning of rank. So what is minor of order R? Minor of order R is actually a determinant of square submatrix of order R. Determinant word में square आ जाता है ना? Because we can't find determinant for a non-square matrix. So if I say here determinant, okay, in that case only you have to consider a square matrix, because you can find determinant for only square matrix. तो वैसे भी उसमें ही वो cover हो रहा है, but still मैं लिख रहा हूँ determinant of square submatrix of order R. So let me explain this first. Okay, so let me take one simple example. Consider a matrix A, which is this. This is my 3 by 3 matrix. Okay, of order say 3 by 3. First, tell me how many minors are there of order 3? How many minors are there of order 3? One. One. 1. Okay. Next is, how many minors are there of order 2? 9. 9. Okay, 9. And how many orders minors? Okay, we'll check it. Of order 1, 9. No. 9. ठीक है. सो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 का मीनिंग क्या है? आपको 3 by 3 सब मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, 3 by 3 ऑर्डर का सब मैट्रिक्स कैलकुलेट करना है, एंड उसका डिटरमिनेंट. माइनर मतलब डिटरमिनेंट होता है. ठीक है. सो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 इज नथिंग बट डिटरमिनेंट ऑफ all matrix or submatrix, you can say here, determinant of all submatrix of order 3 by 3, but there exists only one matrix of order 3 by 3. That matrix itself is the submatrix. मतलब A, आपको पता है ना, A is subset of A है ना, तो यहाँ पे that matrix itself become the submatrix of A है ना. So तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक ही मैट्रिक्स है 3 by 3 का, दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ, तो उसका डिटरमिनेंट जो भी होगा दैट बिकम द माइनर ऑफ ऑर्डर 3. माइनर मतलब एक सिंगल वैल्यू है. ओके, 0 1 2 1 1 0 0 1. व्हाट इज दिस वैल्यू? 1. 1. ओके, मैं चेक नहीं कर रहा हूँ, आप हाँ आप चेक करो. ओके, सो माइनर ऑफ ऑर्डर 3 एक ही है एंड उस वैल्यू इज 1. डन. ऐसे कैलकुलेट करना है. कम टू नाउ माइनर ऑफ ऑर्डर 2. तो इसमें क्या करना है? फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ ऑल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2. 2 by 2 के जितने भी सब मैट्रिक्स है उनका डिटरमिनेंट आपको चाहिए. 2 by 2 के जितने भी सब मैट्रिक्स है उनका आपको डिटरमिनेंट चाहिए. ओके, अब ये इतने सारे केसेस करने की जरूरत है, आई विल एक्सप्लेन ओनली फ्यू केसेस. चलो, सो लेट मी फर्स्ट कंसिडर दिस. ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है. व्हाट इज डिटरमिनेंट? सो आई विल लाइट इट लाइक दिस. नहीं, नोटेशन में क्या देता हूँ यहाँ पे,
माइनर, फर्स्ट माइनर, 2/2 का फर्स्ट माइनर, या m1 लेता हूँ, चलो जाने दो. हाँ, सो इट इज 1. ओके, नेक्स्ट. सारे पॉसिबल कैलकुलेट करने में कुछ कैलकुलेट करके दे रहा हूँ. यू कैन टेक दिस. या भी काउंट में मैटर नहीं करता हमें. हाँ, यस. व्हाट इज दिस वैल्यू? -1. m3 फर्स्ट एंड लास्ट. फर्स्ट एंड लास्ट -1. ओके, आई थिंक फर्स्ट 2 रोज में इतने पॉसिबिलिटी है ना. Yes, sir. ओके, नाउ कम टू सेकंड एंड थर्ड. तो ये काउंट समझ में आएगा, करेक्ट है या रॉन्ग है. कम टू दिस 2 रोज एंड टेल मी ऑल पॉसिबल माइनर्स सेकंड एंड थर्ड रो में. पहला बोलो, फर्स्ट 2 कॉलम्स 0. 0. नेक्स्ट सेकंड एंड थर्ड 1. 1, फर्स्ट एंड थर्ड 2. These are the only possibilities for second and third row. Now come to first row and third row. बोलो, फर्स्ट एंड थर्ड. पहले 2 कॉलम 0. 0. ओके, जिनको नहीं इमेजिन हो रहा है, एक केस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या चल रहा है अभी. ये चल रहा है, ये मैट्रिक्स, दिस 2/2 मैट्रिक्स. तो इसका आंसर है 0. नेक्स्ट m7 0. सेकंड एंड 0. थर्ड 0. m8 1. 1. डन. नंबरिंग रॉन्ग हो गई ना. 9. डन. सो दीज आर दी ओनली माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2/2. अभी क्लियर हो रहा है. माइनर ऑफ ऑर्डर 3 मतलब मुझे क्या चाहिए. अभी माइनर ऑफ ऑर्डर 2 मींस व्हाट. दीज आर दी वैल्यूज 1 -1 -1 0. अभी 1 रिपीट हो गया, -1 भी रिपीट हो गया है. सो 1 -1 0 2. ओके, यही है ना. दिस इज व्हाट, दिस आर ऑल दी माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2/2. उनका डिटर्मिनेंट माइनर होता है. डिटर्मिनेंट, तो ये माइनर है बेसिकली. इज दिस क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. So minor of order 3 is this 1. Minor of order 2/2 are 1 -1 0 and 2, and minor of order 1 by 1 order के. तो that entry itself become the minor of order 1 by 1. तो कितने से possible values है? 9. 1 0. नहीं 1 by 1 मैट्रिक्स लेना है अभी. 1 by 1 मैट्रिक्स. तो वो so that single entry itself is a matrix of order 1 by 1. सो 1 0 2 आई थिंक इतने पॉसिबल वैल्यूज है. एंट्रीज देखो बस, यही है ना. Yes, sir. हाँ, सो दिस वी कॉल्ड एज माइनर ऑफ ऑर्डर आर. अभी इसका यूज हमें कहीं पे भी नहीं करना है. ओके, अभी इसका यूज डेफिनेशन में है. सो नाउ Sir, वी आर minor of order 2 कितना आएगा पिछले एग्जांपल? 6 ना 9 ना 9 थे ना टोटल. फिर से दिखाता हूँ मैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ये 3/3 का मैट्रिक्स था. चलो एंट्रीज मैंने चेंज की. आपको पहले मुझे ये बोलो, 2/2 के कितने सब मैट्रिक्स आने वाले हैं? कितने सब मैट्रिक्स आने वाले? 9 ही आने वाले. कैसे? इफ यू फिक्स फर्स्ट 2 रोज, यहां से आपको 3 मिल जाएंगे. ये देखो ना, फर्स्ट ये दो और फर्स्ट थर्ड. ऐसा ही अगर आप सेकंड और थर्ड रो के लिए करते हो, यहाँ पे भी 3 मिल जाएंगे. ऐसा ही आप फर्स्ट और थर्ड रो के लिए करते हो, 3 मिल जाएंगे. सो टोटल कितने हैं? 9. तो उनका डिटर्मिनेंट दैट विल बी द माइनर्स ऑफ ऑर्डर 2/2. इज दिस क्लियर नाउ? सर डिटरमिनेंट तो फिर अलग अलग नंबर्स आ रहे हैं ना. नंबर्स ही ना, वो नंबर्स ही माइनर है ना. सर सभी है क्या फिर? सारे जितने भी आ रहे हैं सारे कंसिडर करने हैं. 9 सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप ऐसे लिखोगे ना. यहाँ पे मैं 0 0 लिख रहा हूं, बट ये 9 वैल्यूज रहेंगे. Those 9 values are actually the minors of order 2/2, not a matrix. Matrix minor नहीं है, उसका determinant minor है. ओके सर. Okay, पहले केस में बोलो. चलो ये फर्स्ट 2 रो का लिख लेता हूं. बोलो, what is determinant of this? 5 - 8 -3. ये हो गया आपका पहला. Come to next. 12 - 15 -3. ठीक है. Come to next. First and third. -6. Okay. तो these are the minors of first 2 rows. ऐसे आपको सेकंड और थर्ड के लिए कैलकुलेट करना है, फर्स्ट और थर्ड के लिए कैलकुलेट करना है. जो सेट होगा that whole set represent the minors of order 2/2. अभी क्लियर हो गया? यस सर. ओके.
अब आपको आगे ये समझ में आएगा, बट इसका यूज हमें कहीं पे भी नहीं करना है, ठीक है. इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. ओके, सो नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन दिस डेफिनेशन. सो व्हाट इज द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, अभी हमें क्या करना है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ. पहले आपको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन होगा, स्क्वायर होगा, नॉन स्क्वायर होगा, एनी मैट्रिक्स. ओके, एनी मैट्रिक्स लाइक दिस, मैं रैंडमली ले रहा हूँ. एक आपको मैट्रिक्स गिवन होगा, आपको उस मैट्रिक्स के रैंक कैलकुलेट करनी है. तो रैंक बेसिकली एक सिंगल नंबर होता है, एक नंबर आने वाला है यहाँ पे, ठीक है. एंड दैट नंबर टेल्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट अ गिवन मैट्रिक्स. तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, दैट बिकम द एप्लीकेशन. मतलब रैंक कंसेप्ट इसलिए इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आपके पास बस एक वैल्यू आ जाती है, उस वैल्यू से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट दिस मैट्रिक्स. सो दैट इज द बेनिफिट विद द रैंक. अब ये कैलकुलेट कैसे करना है वो पहले लर्न करते हैं. ओके, सो अ नेचुरल नंबर r, so r takes values from 1 to up to infinity, है ना, नेचुरल नंबर है वो. So a natural number r is said to be rank of a matrix A if at least one minor of order r is non-zero. मतलब r by r ऑर्डर के जितने भी सब मैट्रिक्स है उनमें से एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसका डिटरमिनेंट आपको क्या चाहिए, नॉन जीरो. व्हाट इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट, at least one minor of order r is non-zero. There exists one minor or one submatrix of order r by r whose determinant is non-zero. इसका ही अल्टरनेटिव मीनिंग क्या है, at least one minor of order r is non-zero. स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसलिए मैंने ये पहले कंप्लीट किया था, नहीं तो ये कुछ भी नहीं समझ में आता आपको. नेक्स्ट, एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r plus 1 is 0. मतलब क्या होगा, सारे सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर r plus 1 by r plus 1, इस ऑर्डर के जितने भी सब मैट्रिक्स है उन सबका डिटर्मिनेंट 0 आना चाहिए. ऑल, यानी यहां पे क्या, एटलीस्ट वन. ओके, दिस इज द डेफिनेशन. देन वी कॉल दैट r as the rank of matrix A. समझ में आ रहा है यहां तक? Yes, sir. Now let me explain by one Sir, example. please repeat. हाँ, so I will explain directly from one example. ठीक है, हाँ, so समझ में आएगा आपको फिर वहां से. एक मिनट, 1 0 1 2 3 5 1 0 1. ठीक है. Okay, now focus here. So r is the natural number. Okay, and when we call this r as the rank of this matrix, if at least one minor of that order r is non-zero and all the minors of order r plus 1 are 0, and r takes values from 1 to 3 up to infinity. अभी आपका ऑब्वियसली पहला क्वेश्चन क्या होगा कि सर कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब 1 ऑर्डर से स्टार्ट करूं या 2 ऑर्डर से स्टार्ट करूं या 3 ऑर्डर से स्टार्ट करूं, ये आपका पहला क्वेश्चन होगा. ठीक है, सो हमेशा आपको हाईएस्ट ऑर्डर से ट्राई करना है. आप क्योंकि आप 1 से स्टार्ट करते हो ना, उससे आंसर आ जाएगा बट उससे कैलकुलेशन ज्यादा इंक्रीज होगा, है ना. इसलिए आपको पहले हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर से स्टार्ट करना है. अभी आप ये देखो, मुझे पहले ये बोलो कि इस केस में r की हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी. अब इसमें एक छोटा पॉइंट छुपा है, देखते कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है. हाँ, 3 या 2. इस केस में r की हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगी, एंड y. ओके, एक मैं क्या करता हूं, एक और रो ऐड कर देता हूं. नाउ टेल मी, 3. इस केस में r की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, y. Square matrix. वेरी गुड, डन. इतना ही था, क्योंकि माइनर इज ऑल अबाउट अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स. स्क्वायर ही होता है ना वो. माइनर डिटरमिनेंट कौन से केस में ले सकते हो, स्क्वायर मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ले सकते हो. इसलिए कोई भी मैट्रिक्स आने दो, आपको पहले ये देखना होगा इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर सब मैट्रिक्स की, मतलब व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स. कोई भी क्वेश्चन आने दो, आपको पहले ये देखना होगा कि व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्क्वायर सब मैट्रिक्स. तो इसमें in this case what is the order of your highest square submatrix, 3 by 3 का ही होगा ना.
यू कांट टेक अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4 क्योंकि एग्जिस्ट होगा ही नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है. सो हाईएस्ट जो ऑर्डर होगी वो क्या होगी, 3x3 की होगी. इसलिए आर की यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3 है हाईएस्ट वैल्यू. पहला पार्ट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay. And now let me explain the definition. ये आउट ऑफ द बॉक्स था. चलो सेम क्वेश्चन के लिए पहले स्क्वायर का ही लेता हूं मैं. हाँ, सो ये तो आपको समझ में आ गया अभी कि आर की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, 3 है. सो पहले केस में एज्यूम करो कि रैंक इसकी 3 है. एज्यूम करो ना, फिर देखते कि वो करेक्ट है कि नहीं. अगर मैं बोलता हूं कि r इज इक्वल टू 3 मेरा r इक्वल टू 3 इज द रैंक ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स, तो उस केस में ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट होने चाहिए. करेक्ट ना? Yes, sir. हाँ, ओके. सो पहला पार्ट क्या है, एटलीस्ट 1 माइनर ऑफ ऑर्डर r. अभी मुझे ये बोलो 3x3 के कितने माइनर है यहाँ पे? एक. एक ही होगा. सो टेल मी इट्स डिटरमिनेंट. एक ही माइनर है, उसका डिटरमिनेंट 0. 0. बट क्वेश्चन क्या था, एक नॉन जीरो चाहिए, बट एक ही था वो भी 0 है. सो ये ट्रू कर रहा है. वेदर इट सेटिस्फाइज दिस फर्स्ट कंडीशन? नो. नो. तो सेकंड में जाने की जरूरत ही नहीं है ना. सो दिस इज नॉट ट्रू. दिस इज नॉट ट्रू क्योंकि आपको एक नॉन जीरो चाहिए था, अभी वो नहीं आ रहा है, तो दिस इज नॉट ट्रू. ओके. हाँ, अभी आप बोलोगे सर अगर ये नॉन जीरो आता तो क्या, तो मेरा पहला स्टेटमेंट ट्रू हो जाता ना? Yes. Yes. Yes, sir, true Okay. हो जाता. So in that case, I have to go for next case. But tell me, can you check this next case? No. No, ना. So ये by default true होगी ना उस केस में. चेक ही नहीं कर सकते हो ना, तो वो ट्रू ही होगी. You can't check the minor of order r+1 क्योंकि 3 हाईएस्ट ऑर्डर है, तो 4x4 का माइनर चेक ही नहीं कर सकते हो आप. चेक ही नहीं कर सकते तो वो केस ही नहीं आती बेसिकली. दैट केस इज नॉट देयर. ओके. हाँ, तो दोनों केसेस में समझ में आ गया आपको? तो अब ये 0 आ रहा है. सो लेट मी कंटिन्यू विद द 0. ये अप्रोच आपको सिलेबस में नहीं है. हाँ, ये बस मैं जस्ट फॉर योर नॉलेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. यस. चलो सर हाँ. नल 3x3 मैट्रिक्स में फिर ये रैंक क्या होगी, तो वो होगी? 0 ही होगी. तो ये मैं एक्सप्लेन करता हूँ बाद में. सो देयर इज ओनली वन मैट्रिक्स ऑफ रैंक 0 क्योंकि यहाँ पे आर की लिमिट मैंने क्या रखा है, एक से आगे रखा है ना आर का लिमिट, क्योंकि नेचुरल नंबर है वो. Yes, sir. हाँ. सो ऑब्वियसली आपकी केस होगी व्हाट इज द रैंक ऑफ 0 मैट्रिक्स देन. सो वी हैव टू कंसीडर इट्स रैंक टू बी 0 क्योंकि 0 रैंक का कोई यूज नहीं है. तो आप 0 करके उसको फिनिश करो, उस टॉपिक को वहीं पे एंड कर दो, ऐसा है. ठीक है. ओके. ओके. सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट केस. ये हाईएस्ट वैल्यू थी, तो प्रीवियस केस क्या होगी नाउ? ये केस रॉन्ग आ रही है. कम टू नेक्स्ट केस. r इज इक्वल टू 2. आपको अभी समझ में आएगा मैं हाईएस्ट से क्यों जा रहा हूं. हाँ, अभी पहला स्टेटमेंट फिर से चेक करना है. एटलीस्ट 1 माइनर मतलब वहां पे एक ऐसा सब मैट्रिक्स मुझे चाहिए 2x2 ऑर्डर का. एक चाहिए, एटलीस्ट एक तो चाहिए मुझे. ओके. एटलीस्ट मतलब एक मिलता तो भी चलेगा, एक से ज्यादा मिलते तो भी चलेगा, बट एक मुझे चाहिए जिसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है. सो टेल मी अ स्क्वायर सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 whose determinant is non-zero. Yes sir, satisfied, condition satisfied. Satisfied It हो रही है ना? satisfies. आप कोई भी एक सिलेक्ट करो रैंडमली, कोई भी एक सिलेक्ट करो. मैं यही सिलेक्ट करता हूं. आई विल सिलेक्ट दिस. तो इसका जो डिटरमिनेंट है ना 1 0 2 3, ये 3 आ रहा है विच इज नॉन जीरो. सो इट सैटिस्फाइज माय फर्स्ट कंडीशन. डन. सैटिस्फाई कर रहा है. अभी सेकंड कंडीशन क्या आएगी? एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 मतलब व्हाट मींस व्हाट? r में +1 ऐड करो. सो एवरी माइनर ऑफ ऑर्डर 3x3 r0. ऐसा ही बोला है ना सेकंड कंडीशन में, वो तो है ही ना. Yes sir, Yes, 0 तो है satisfied. So both conditions satisfied. Therefore, rank of this given matrix is 2. ये है कंसेप्ट आपकी. एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ ईच स्टेटमेंट. डन. हाँ, अभी आप बोलोगे सर प्रीवियस केसेस में जाने का जरूरत ही नहीं है. ठीक है, जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्या होगा जब आप r इक्वल टू 1 पे जाओगे ना, सेकंड कंडीशन ट्रू नहीं होगी. करेक्ट ना? Yes sir. हाँ, क्योंकि 2x2 का नॉन जीरो मिल रहा है ना, आपको सारे जीरो चाहिए थे. सो नो नीड टू चेक दिस फर्स्ट कंडीशन. ओके. So I think this part is clear now. So what is rank? In general, rank of matrix, rank of A is denoted by this notation, row of A. तो अब इसके आगे याद रखो, row of A means rank of that matrix. Row of A means rank of that matrix. Okay. हाँ. And there is one more approach. It is a maximum order of non-vanishing minor. Are you able to connect with this statement now? Maximum order.
नॉन वैनिशिंग माइनर मतलब नॉन जीरो माइनर। कनेक्ट हो पा रहे हो क्या आप इस वर्ड से भी? Sir, I Yes, didn't sir. get that statement, sir. Please हाँ, explain. अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मुझे ये बोलो, हाईएस्ट माइनर के ऑर्डर क्या थी? 3/3, है ना? Yes, sir. तो सारे 3/3 के डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आ रही थी? 0 आ रही थी। 0. हाँ, फिर उसके बाद माइनर क्या था? 2/2। वहां पे एक आपको नॉन जीरो मिल रहा था ना, करेक्ट ना? Yes, sir. तो ये Yes, sir. इससे क्या समझ में आ रहा है? व्हाट इज द हाईएस्ट माइनर, हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर? व्हाट इज द हाईएस्ट नॉन जीरो माइनर? 2 ना? No, yes, 2. Yes, 2 ना, 2/2 का मैट्रिक्स ना। सो इट इज अ मैक्सिमम ऑर्डर, इसके ऑर्डर में बोल रहा हूँ, इट इज अ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर। तो रैंक इस केस में रैंक 2 ही आ रही थी ना, जो उसकी ऑर्डर थी वही रैंक थी ना, 2/2 मैट्रिक्स था, तो जो उसकी ऑर्डर है वही रैंक है। सो देयरफॉर इट इज अ मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ नॉन वैनिशिंग माइनर। आर यू कनेक्टिंग नाउ? Yes, sir. Clear. Yes, ओके ओके, इसलिए एक ही एग्जांपल याद रखो जिससे ये सारे वर्डिंग को आप कनेक्ट कर सकते हो। ओके हाँ, तो अभी सुनो, ये जो अप्रोच है ना, ये प्रैक्टिकली सबसे डिफिकल्ट अप्रोच है, इसलिए हम किसी भी क्वेश्चन में इस अप्रोच से नहीं जाने वाले। सो वट एवर जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, हाउ टू फाइंड द रैंक ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, दिस अप्रोच प्रैक्टिकली इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना इतने सारे केसेस में, अभी आप सोचो 2/2 के वहां पे टोटल 9 केसेस थे 3/3 मैट्रिक्स में, 9 मैट्रिक्स का, क्योंकि अगर उसमें से 8 0 आ रहे हैं ना, तो आपको सारे चेक करने होंगे ना, चेक करना अंटिल अनलेस यू गेट अ नॉन जीरो वैल्यू। अब ये तब तक चेक करोगे जब तक आपको नॉन जीरो वैल्यू नहीं मिलती है, बट अगर 8 डिटरमिनेंट आपके जीरो आते तो वो एक कैलकुलेट करना भी कितना डिफिकल्ट है। ये तो बस मैं 2/2 के लिए बोल रहा हूं, आप चेक करो कि 4/4 में कितने केसेस आएंगे। सो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है क्या ऐसा इस अप्रोच से जाना, इतने सारे डिटरमिनेंट चेक करना? नॉट एट ऑल पॉसिबल। ओके, सो देयरफॉर वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच बाय व्हिच within hardly 2 or 3 steps you will get a rank of a given matrix, and those methods are, one is called as echelon form. This is one specific form of a given matrix, है ना, जिसको आप बोलते हो echelon form. It's a specific form of a given matrix, and second is called as normal form, and this is your first topic. Okay, so these are the two methods in your syllabus by which you will get the rank of a matrix. Okay, these are the you said in our syllabus, sir, are there any more methods? yes, to find there are many methods. Okay, there are many methods. Determinant method is also there. अभी जो एक्सप्लेन किया वो भी एक मेथड है ना, अभी जो एक्सप्लेन किया था मैंने। थर्ड, दिस echelon फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, देयर इज वन मोर फॉर्म, PAQ फॉर्म। तो इसमें देयर आर मेनी डिफरेंट अप्रोचेस बाय व्हिच यू विल गेट द रैंक, बट एज फार एज आवर सिलेबस इज कंसर्न, यू हैव टू फोकस ऑन ओनली दिस फर्स्ट 2 टाइप्स, और ये सबसे फेमस मेथड है echelon फॉर्म, द मोस्ट क्विक और मोस्ट फास्ट मेथड टू फाइंड द रैंक। इसलिए बाकी मेथड वैसे भी प्रैक्टिकली इतने इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि इट्स अ टाइम कंज्यूमिंग मेथड। ओके, अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था ना आपको, वो डिटरमिनेंट मेथड ही है। ये जो डेफिनेशन एक्सप्लेन कर रहा था ना, दैट मेथड इज कॉल्ड एज डिटरमिनेंट मेथड। मैं डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके चेक कर रहा था कि रैंक क्या है। ओके हाँ, ओके, एनी डाउट अप टू दिस पार्ट? No, sir. No, sir. No, sir. Now let me define what is echelon. No, sir. हाँ, तो अभी echelon फॉर्म पहले आपको समझ में आना चाहिए, कि मैंने आपको पहले बोला कि echelon फॉर्म इज वन स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। एक स्पेसिफिक फॉर्म होता है मैट्रिक्स का। ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन दिस। echelon form of matrix of order m by n, so any general matrix, is a matrix in which first r rows are non-zero. First r rows ये मैट्रिक्स है, आर नॉन जीरो, एंड ऑल द रिमेनिंग जो रोज आर जीरो, और नीचे के रोज क्या है? जीरो। पहला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? इस Yes. फॉर्म में गलती से भी नॉन जीरो रो ऊपर नहीं चाहिए, ये बोल रहे हैं ना वो? इज दिस पॉसिबल? नो, है ना? No, sir. इफ देयर इज अ जीरो रो, इफ एग्जिस्ट बोला है लास्ट में, आप अच्छे से देखो, इफ एग्जिस्ट मतलब इफ देयर एग्जिस्ट अ जीरो रो, इट मस्ट बी एट बॉटम। यही था मेरा पहला स्टेटमेंट। इफ देयर एग्जिस्ट अ जीरो रो, इट मस्ट बी एट बॉटम। नहीं है तो आपको चेंज करके लेना है, करेक्ट है? मतलब चेंज करके लेना है, मतलब आपको उस मैट्रिक्स को echelon फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, ये पहला स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, now यही next, this is the important statement now. In first R row, now forget about this zero row, इसका कोई लेना देना नहीं है आपको। In first R rows, the first non-zero element of each row
the first non-zero element of each row appears to the right of the first non-zero element of the, just 1 minute हा सर लेक्चरला ऍक्च्युली हॅलो हॅलो हा हा बोला ना सर लेक्चरला होतो बोला बोला हां ओके ठीक आहे सर लेक्चर नंतर करू हा तुम्ही मी त्यांना इंट्रक्शन देतो माझं याच्यावर लेक्चर आहे आता तर मी त्यांना सांगतो व्यवस्थित हां व्यवस्थित सांगतो की लिंक चालेल चालेल मी करतो ऍड आणि मी मुलांना इन्स्ट्रक्शन पण देतो हां ओके हां ओके okay so we'll continue so in the first r rows first non-zero element of each row appears to the right of the first non-zero number of the previous row तो ऐसा ही दिखाई देना चाहिए ना कुछ तो whether it satisfies your condition देखो in first r row इसका जो पहला that we call it as leading element of row okay so the first non-zero element leading मतलब वो non-zero चाहिए the first non-zero element of each row जैसे if I talk about this row ये कहाँ पे चाहिए it must be at the right of the first non-zero element of the previous row correct ना the first non-zero element of this it must be right of the first Yes, non-zero sir. of the previous अभी आप बोलोगे इसके लिए क्या होगा इसके पीछे रो है ही नहीं ना so no need to check for this Yes, sir. the first non-zero element of this row appears to the right of the right मतलब ये next column में चाहिए इतना बोल रहा हूं मैं है ना next column में चाहिए ये next column में चाहिए उसके next column में चाहिए okay now let me give you some examples आप मुझे इतना बोलो कि whether this matrix is in echelon form or not ये echelon form है या नहीं इतना ही आपको बोलना है let me talk about this first पहली कंडीशन क्या है if zero row is there it must be at bottom true हो रही है Yes, sir. Yes, sir. so first condition satisfied come to second तो जो पहले के नॉन जीरो रोज है तो इसको नीचे देखो ही मत सो इन फर्स्ट आर रोज फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ ईच रो इसका जो पहला नॉन जीरो नंबर है ये उसके पीछे की जो रो है अभी है ही नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं है हाँ बट इसके लिए आप चेक कर सकते हो सो दिस फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इज द राइट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर ऑफ द प्रीवियस रो नेक्स्ट कॉलम में चाहिए आप बोलोगे Yes, सर sir. नेक्स्ट कॉलम में उसके नेक्स्ट कॉलम में चलेगा ना एट देन वी वांट इन द राइट उसके नीचे नहीं चाहिए बस इतना ही हमें चाहिए तो ये नंबर यहाँ पे भी होता ना तो भी चलेगा यहाँ पे भी है तो भी चलेगा यहाँ पे भी है तो भी चलेगा एट द एंड यू डोंट वांट दैट नंबर इन दैट सेम कॉलम करेक्ट ना Yes, sir. Yes, sir. so therefore this matrix is in echelon form हाँ कम टू सेकंड बोलो मुझे echelon फॉर्म है या नहीं है सर. है यहाँ पे जीरो रो है ही नहीं तो बॉटम पे लेके जाने की जरूरत है ही नहीं दैट पार्ट इज लेके जाने की जरूरत मतलब वो पार्ट देखना ही नहीं है बिकॉज जीरो रोज आर नॉट देयर हाँ नाउ लेट मी चेक दिस रो इसका जो नॉन जीरो नंबर है ये कहाँ पे उसके पीछे की जो रो है उसके राइट साइड में और इसका जो नॉन जीरो नंबर है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर इट विल बी एट द राइट ऑफ द नॉन जीरो नंबर ऑफ द प्रीवियस रो सो इट सैटिस्फाइज ऑल द कंडीशन दिस मैट्रिक्स इज इन echelon फॉर्म ये भी करेक्ट है ना echelon फॉर्म ही है ना Yes, sir. No, sir. है सर. Yes. ये भी echelon है सर क्योंकि ओके फर्स्ट नॉन जीरो नंबर राइट में दिखाई दे रहा है ओके नाउ लेट मी गिव सम मोर एग्जांपल्स आप बोलते जाओ echelon फॉर्म है कि नहीं है क्या ये echelon फॉर्म No, sir. Yes, sir. No, sir. सर Yes, sir. यस सर क्योंकि नीचे और कोई रो है नहीं। क्योंकि इसमें जीरो रोज ये आ रहे वो बॉटम पे ही है यानी वहां पे एक ही रो है तो वो सेकंड कंडीशन नहीं आती ना यस सर सेकंड कंडीशन अप्लाई नहीं करते अप्लाई नहीं करेगी सो इट बाय डिफॉल्ट इट बिकम echelon फॉर्म ओके हाँ अभी इसमें चेंजेस करते जाऊंगा मैं आप बस बोलो सॉरी लेट मी जस्ट अभी यहाँ पे मैं लेता हूँ 0
3 2 0 0 0 5. Whether this is an echelon form? No. हाँ, क्योंकि आप देखो, अगर आप पहले नॉन जीरो को आप क्या करो, ब्रैकेट करते रखो और फिर समझ में आता है अरे ये राइट में नहीं है, ये राइट में नहीं है, तो इसमें प्रॉब्लम है, इसमें प्रॉब्लम है। तो अगर मुझे इसको एक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना तो मैं क्या कर सकता हूँ? राइट नाउ इट इज नॉट इन एक्लोन फॉर्म। अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये एक्लोन फॉर्म में है कि नहीं, तो आपका आंसर नो ही होगा। ये पार्ट, ये क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। ओके, अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ यू कन्वर्ट दिस मैट्रिक्स इनटू एक्लोन फॉर्म यूजिंग एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड रो। तो अगर मैं यहाँ पे इंटरचेंज कर लेता हूँ ना टू रोज को, इट बिकम एक्लोन फॉर्म। डन। यही आपको करना है इस टॉपिक में। ओके, सो आई थिंक अभी आपको एक्लोन फॉर्म तो समझ में आ गया है। ओके, और भी कुछ एग्जांपल्स है क्या इसमें? नहीं है। हाँ हाँ, नाउ क्या है आगे? 1 मिनट। चलो डायरेक्टली क्वेश्चन ये है। इसमें कुछ पार्ट ऐड करना रह गया है। नाउ व्हाई वी नीड दिस एक्लोन फॉर्म? ओके, तो उसके लिए एक रिजल्ट है। आई विल राइट हियर इन रिमार्क। मैं ये ऐसे रख देता हूँ पीपीटी में ही। सो in echelon form, there is one more word for this which is called as canonical form. तो याद रखो दोनों वर्ड। in echelon form, rank of matrix is always equal to number of non-zero rows. देखो कितना strong result है। So what is the rank of this first matrix? Sir, 2. There are only 2 non-zero rows. What is the rank of second? 3. 3. Right. 3. There are 3 non-zero rows. Non-zero row का मीनिंग पता है ना? Non-zero, zero row. Zero row means what? All elements are zero. अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो आता है, it become non-zero row. यहाँ पे देखो, ये non-zero row है. It is not a zero row. If all elements are zero, then only we call it as zero row. अरे फिर से लिखना होगा. Just 1 minute. Remark. In echelon form, rank of a matrix is equal to number of non-zero rows. तो इसलिए अभी आपके पास एक रिजल्ट क्या आ रहा है? इफ वी हैव अ echelon form, we can easily write down its rank. Number of non-zero rows become the rank. ओके, हाँ, अभी आपका टारगेट क्या है? नाउ वी हैव टू रेड्यूस एनी गिवन मैट्रिक्स इनटू इट्स एक्लोन फॉर्म बाय यूजिंग ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। अभी आप बोलोगे कॉलम क्यों नहीं यूज करें? क्योंकि कॉलम यूज करते हो तो रैंक चेंज हो जाती है। ठीक है, सो यूज ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन टू कन्वर्ट अ गिवन मैट्रिक्स इनटू एक्लोन फॉर्म। ओके, एज दिस मैट्रिक्स बी इज इक्विवेलेंट टू मैट्रिक्स ए। करेक्ट ना? आप अगर एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हो, जो भी रिजल्ट होता है वो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स ही होता है। सो इफ दिस टू मैट्रिक्स आर इक्विवेलेंट, इफ दे आर इक्विवेलेंट, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ बी। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्या करने वाला हूं मैं अभी इसके आगे? आई विल कन्वर्ट अ गिवन मैट्रिक्स ए इनटू एक्लोन फॉर्म। ओके, फिर उसके बाद मेरे पास बी की रैंक आ जाएगी। ओके, एंड एज हियर वी हैव परफॉर्म ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन और एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन, देयरफॉर व्हाटएवर रैंक इज देयर ऑफ मैट्रिक्स बी इज एग्जैक्टली इक्वल टू रैंक ऑफ ए। क्योंकि इक्विवेलेंट मैट्रिक्स की डेफिनेशन ही वही है, रैंक चेंज नहीं होने वाली। आप कितने बार भी उस पर ऑपरेट करो। आप यहाँ पे देखो ना, इफ आई इंटरचेंज फर्स्ट 2 रोज, वेदर माय रैंक चेंजेस? नो सर। नो ना। आप चाहो तो ये ऑपरेशन करके देखो, R2 पे दैट R2 minus 2 times R1, whether my rank changes? इस पे कहीं पे भी ऑपरेट करके देखो, whether my rank changes? नो सर। आप बोलोगे कि सर वो एक्लोन फॉर्म नहीं रहेगा तो उसमें कन्वर्ट करो ना। ये यहाँ पे नॉन जीरो आ जाएगा, फिर से उसको ऊपर शिफ्ट करो, कन्वर्ट करो एक्लोन फॉर्म में, बट रैंक 2 ही रहेगी। तो आप कितने भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करो, कितने बार भी अप्लाई करो, रैंक अगर आपकी उसकी 2 है ना, तो आफ्टर परफॉर्मिंग एलिमेंटेड ट्रांसफॉर्मेशन वो रैंक 2 ही रहेगी। सो व्हाट इज माय नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट? एलिमेंट्री
ट्रांसफॉर्मेशन एलिमेंट्री, आई विल स्पेसिफाई, क्योंकि इक्विवेलेंट फॉर्म में रो ही करना है तो मैं वही लिख लेता हूँ, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट अल्टर रैंक। सर हाँ, एक बार कॉलम का इंटरचेंज करके बताओगे किधर गलत जाता है? दैट यू कैन चेक, मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ तो आप उसमें चेक करो। सी उसके लिए ना नॉर्मल फॉर्म है, मतलब अगर आपको कॉलम के ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं ना तो उसके लिए रूल है, उसके लिए एक रूल है स्पेसिफिक, उस रूल से जाते हो तभी वो रैंक करेक्ट देगा। ओके, अभी आपको जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर आपको भी मिल जाएगा व्हेन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है? ओके सर। तो अभी एक क्वेश्चन में लेने वाला हूँ, उसमें आप अपने हिसाब से कोई भी कॉलम ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, देखो कि क्या चेंज हो रहा है। ओके, बट यू कांट परफॉर्म कॉलम ट्रांसफर, एनी सिंगल कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब बोलोगे कि सर मेरा आंसर तो सेम आ रहा है, एक केस में आएगा, दो केस में आएगा, तीन केस में आएगा, बट सारे केसेस में नहीं आने वाला। देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स वेयर यू विल गेट अ डिफरेंट रैंक। ओके, तो ऐसा नहीं होगा कि एक केस में आ रहा है मतलब सारे केसेस में आ रहा है। Okay, you can easily find one example where because of column transformation your rank changes, therefore you will get a wrong answer. So that you can find itself, if not I will give you, ठीक है? क्रिएट करके भी दे सकते हैं। ओके, नाउ लेट अस फोकस ऑन दिस फर्स्ट क्वेश्चन। अभी इसी क्वेश्चन में ये थ्योरी भी आपकी हो जाएगी। और 5 मिनट है ना हमें? कैन यू जस्ट चेक क्विकली? Yes, sir. लेट मी एक्सप्लेन दिस क्विकली। हाँ, अभी आपको समझ में आ गया। अभी आप मुझे कैन एनीवन टेल मी इन अ रफ लैंग्वेज, इन रफ वे, इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब क्या, किस में कन्वर्ट करना है, कैसे दिखाई दे रहा है वो मैट्रिक्स, आपको थोड़ी बहुत आइडिया आ जाएगी ना। इक्विवेलेंट फॉर्म इज वेरी मच अपर ट्रायंगुलर, वेरी गुड, इट लुक लाइक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ना। Yes, sir. ऐसे आप दिमाग में रखो, ये दिस इज नॉट ट्रू, नॉट एवरी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब क्योंकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, करेक्ट ना? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज डिफाइंड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स। यहाँ पे नॉन स्क्वायर भी आने वाला है, यहाँ पे नॉन स्क्वायर भी आने वाला है। सो द ओनली डिफरेंस इज व्हाट यू हैव टू एज्यूम द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इन केस ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स आल्सो। तो थ्योरी वही है, लॉजिक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का ही है। ओके, तो वो आप याद रखो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे ऑपरेशन समझ में आ जाएंगे। ओके, सो नाउ लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दिस मैट्रिक्स। सो in this given matrix, whether this given matrix is an echelon form, ये echelon form है क्या? नहीं, echelon form है क्या ये? नो नहीं है सर। ना? हाँ, तो आपको इसको echelon form में कन्वर्ट करना है। इसका सिंपल मीनिंग क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर में जब आप कन्वर्ट करते हो तो आप इसको ऐसे ही रखोगे और आपको नीचे के दोनों एलिमेंट्स को क्या करना है, जीरो करना है। एंड यहाँ पे मैंने आपको क्लियर कर दिया, यू हैव टू परफॉर्म ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन। सो कैन यू टेल मी द ऑपरेशन ऑन R2 एंड R3? इतना याद रखो। ओके, एक कुछ और रिजल्ट में आपको दे रहा हूं, आपको धीरे धीरे उनका मीनिंग समझ में आएगा। हमेशा याद रखो, जिस एलिमेंट के नीचे आप जीरो कर रहे हो ना, ओके, वही रो, मतलब इस रो के नीचे आप एलिमेंट जीरो कर रहे हो तो इसी रो का यूज करके आपको नीचे के एलिमेंट जीरो करने। आई विल रिपीट अगेन, इस एलिमेंट के नीचे आप एंट्री जीरो कर रहे हो, इसका सिंपल मीनिंग क्या है, इस रो के नीचे आप एलिमेंट जीरो कर रहे हो। ओके, तो जब आप इन दोनों एलिमेंट को जब आप जीरो करते हो, यूज ओनली रो वन का ही यूज करके R2 को जीरो करना है और R3 को जीरो करना है। सो कैन एनीवन टेल मी द ऑपरेशन ऑन R2 बाय विच आई विल गेट जीरो हियर, -2 के जगह पे मुझे जीरो चाहिए यूजिंग R1? बोलो सर R2 प्लस सर अगर R2 R2 plus 2R1, वेरी गुड। R2 plus सर अगर R3 को सर हमें चेंज करना है सर, अगर उसके लिए हम R2 यूज करते हैं सर तो रैंक चेंज हो जाएगा क्या? चेंज R3 को चेंज करना है मतलब आप सबट्रैक्ट करने वाले हो क्या किसी रो से? नहीं सर, मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ सर। कर सकते, उससे रैंक चेंज नहीं होती। आप कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करो, यू हैव 3 एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें से कॉलम छोड़ के, कॉलम में नहीं जाना है, आप रो के ऊपर कुछ भी ऑपरेट करो, कैसा भी करो, रैंक सेम ही आएगी। सर तो आई वांटेड टू नो द रीजन सर कि आप ये क्यों सजेस्ट कर रहे थे सर कि मतलब सिर्फ R1 यूज करके ये करना। हाँ, उससे क्या होता है, जब आप आगे जाते हो ना, इक्विवेलेंट फॉर्म डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, हाँ, क्योंकि आपको एडजन ऐसे करते आना है ना, यस सर, सॉरी, मतलब वो जीरो नीचे सेट करते आना है ना,
अगर आप रैंडम जाते हो, मैं बोलता हूँ डायरेक्टली ये एलिमेंट 1 करो, पॉसिबल है क्या? जब आप ऐसे करते हो तो यू विल नीड द मोर नंबर ऑफ स्टेप्स। अभी आप नाउ यू आर इन कंप्यूटर ब्रांच, आपको या आप इससे भी कनेक्ट कर सकते हो। जब आप कोई प्रोग्रामिंग सेट करते हो, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट दैट शुड गेट कंप्लीटेड इन अ मिनिमम टाइम, है ना, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो अगर आपको सेम एक्लॉन फॉर्म की अगर आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो आपको प्रोग्राम ऐसे सेट करना होगा कि इतने फिक्स नंबर ऑफ स्टेप्स में आपको सोल्यूशन मिलना चाहिए। कोई भी एग्जांपल आने दो, ये आपका अप्रोच होगा ना। यू कैंट अप्रोच दैट क्वेश्चन रैंडमली, मतलब किसी भी रो से स्टार्ट किया, ऐसी प्रोग्रामिंग कभी पॉसिबल है ही नहीं। सो दैट इज द रीजन, ओके। यस सर, गॉट इट। सॉरी, और यहाँ आप ये ट्राई करो, इसका एक एक्सेल या प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो। अभी आप ऑलरेडी पीपीएस में इसमें लर्न करने वाले हो, यू कैन ट्राई दिस प्रोग्रामिंग आल्सो, इट इज इंटरेस्टिंग। ओके, हाँ, सो R3, नाउ टेल मी ऑपरेशन ऑन R3 3 minus 3 times R1. ओके, सो लेट मी कंप्लीट दिस क्विकली। अभी मैं जो मैट्रिक्स लिखने वाला हूँ ये एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के बाद लिखने वाला हूँ। सो हियर आई हैव टू ऐड दिस नोटेशन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस नोटेशन? Equivalent matrix. Equivalent. Very good. Done. So 1 2 1. आप चेक करो मेरा कैलकुलेशन, डोंट ट्रस्ट ऑन माय कैलकुलेशन। -2 + 2 टाइम्स दिस 0, है ना। देन क्या है, दिस + 2 टाइम्स दिस 1 3 1 एंड दिस + 2 टाइम्स दिस 3। ओके, 3 ये सब्ट्रैक्ट करना है। तो 0 5 - 6 -1, यहाँ पे -3 पहला पार्ट हो गया। हाँ, अभी आप ये देखो, नाउ R1 में पहला नॉन जीरो नंबर सेट हो गया, उसके नीचे सारे एलिमेंट 0 आ गए। इसके आगे R1 रो को आपको टच भी नहीं करना है। अभी आप बोलोगे इसका रीजन क्या है? सेम, बिकॉज यू आर नॉट सपोज टू डिस्टर्ब दिस एक्लॉन फॉर्म, ठीक है। अगर आप इसको टच करते हो ना R1 रो को, फिर से ये डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो डन। नाउ कम टू सेकंड रो। फर्स्ट रो का पहला नॉन जीरो नंबर, नीचे सारे 0 आ गए, डन। नाउ रो R1 का रोल खत्म हो गया, R1 कहीं पे भी नहीं आनी चाहिए अभी। नाउ कम टू सेकंड रो, नीचे आ जाओ। सेकंड रो में ये मेरा पहला नॉन जीरो नंबर है, उसके नीचे मुझे सारे 0 करने हैं, ठीक है। तो जब मैं इस रो के नीचे 0 कर रहा हूं तो मुझे कौन सा रो का यूज करना होगा? R2 का ही करना होगा। R1 पे जाते हो, आपको समझ में आएगा, जब आप R1 पे जाते हो तो यहाँ पे नॉन जीरो आएगा ना। यस सर। हाँ, सो दैट डिस्टर्ब द एक्लॉन फॉर्म। दैट्स व्हाई जो मैं बोल रहा हूं उस पे आप फोकस करो। कभी कभी हो सकता है आप कर सकते हो ऑपरेशन, ये कोई रूल नहीं है, आप जो चाहे वो कर सकते हो, क्योंकि वो इट विल नॉट डिस्टर्ब द रैंक। बट ये मैं जो प्रोसेस बोल रहा हूँ ना, इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अगर आप ऐसे जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन आने दो, यू विल ऑलवेज गेट द एक्लॉन फॉर्म एट द एंड, कहीं पे भी मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। ओके, सो दिस इज माय सेकंड रो। मुझे R3 का एलिमेंट 0 करना है, ऑपरेशन बोलो R3 प्लस R2, और इसी रो का यूज करना था, तो वो भी मैंने किया। नाउ दिस मैट्रिक्स रैंक इज 2 सर। यस, गुड। सो 0 1 3, ये भी 0 ही हो जाएगा। दिस मैट्रिक्स इज इन एक्लॉन फॉर्म। आप चेक करो, या हमेशा इसमें जैसे आपको समझ में आता है कि अभी एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, आपको ये स्टेटमेंट लिखना है, विच इज इन एक्लॉन फॉर्म, therefore rank of this matrix is equal to what? How many non-zero rows are there? 2. Yes, so rank is 2. Okay, so here we'll stop today. I will give you some example for a practice. तो ये PDF में शेयर कर देता हूँ। So from that will you share a PDF today sir? yes, today itself, after this session itself. So example 2, example 3 and example 4, this you have to try, ठीक है। क्लासरूम पे सर? क्लासरूम पे, Yes, क्लासरूम sir. पे I will share this on a classroom. Sir, we have to solve an upload, right sir? Yes, in a notebook. अभी ऑफलाइन स्टार्ट होने वाला है, तो आपके पास एक प्रॉपर नोटबुक चाहिए। हाँ, Yes. हेलो यस हेलो सर, वो गूगल क्लासरूम पे कैसे ज्वाइन करें सर? ओके, आई विल एक्सप्लेन दैट, जस्ट 1 मिनट। हाँ, अभी कौन सा लेक्चर है? अभी ब्रेक ब्रेक है ना? ब्रेक है सर। हाँ, एक मिनट। हाँ, बस आई थिंक है ना आपका, उसके बाद काले सर का कुछ तो लेक्चर है। लेट मी फर्स्ट ऐड देम ऑन अ ग्रुप। एक ही मिनट दो मुझे। एक लिंक आपको मिलने वाली है नेक्स्ट लेक्चर के लिए, तो आपको उस पे ज्वाइन करना है। 1 बजे जो सेशन होगा,
सो सर वो शेयर कर देंगे ग्रुप पे. ओके, नाउ दोज हु हैव डाउट दे कैन स्टे ऑनलाइन, अदर्स कैन लीव. ओके, आई डोंट वांट टू Thank you, हैम्पर sir. देयर ब्रेक. ओके, थैंक यू सर. थैंक यू सर. जिनको पता है क्लासरूम के बारे में दे कैन लीव दिस सेशन. मैं क्लासरूम पे अपलोड Sir, करने वाला हूँ. हाँ, बोलो बोलो. कल के नोट्स मतलब पिछले बार से. कंबाइन ही देता हूँ मैं अभी. चल मैं चलो, चलो थैंक यू. हाँ. जल्दी भेज दो ये. 15 तक मैं आपको बहुत कुछ लिखना स्लाइड 15 तक मैं पीडीएफ करके दे रहा हूँ इमीडिएटली. हाँ सर, बहुत कुछ लिखना है. Yes, we'll do that immediately. ओके, दोज हु डोंट नो हाउ टू यूज दिस क्लासरूम. ओके, जब आप क्लासरूम पे जाते हो अभी इमीडिएटली नोटिफिकेशन भी आ जाएगा और यू कैन चेक इन अ क्लास वर्क यूनिट 1 और इसमें आपको मटेरियल दिखाई देगा. अभी यहाँ पे नहीं है, सो आई विल अपलोड. सर हाँ, बोलो. आपके क्लासरूम का लिंक डालो ना सर. ओके, चैट बॉक्स में डालो अभी. हाँ, आप चाहो तो एक और बार ग्रुप पे शेयर कर दो. अभी व्हाट्सएप पे जाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा यहाँ से. सर सभी असाइनमेंट्स का लिंक अलग होगा क्या? सभी का क्लासरूम अलग होगा सारे सब्जेक्ट. ओके, ओके. तो वहीं पे एग्जाम होगी. कहाँ गया वो लिखा. समवन प्लीज कॉपी दिस एंड यू कैन शेयर ऑन अ ग्रुप. आई थिंक आपको राइट्स नहीं है, या मुझे पर्सनली शेयर करके रखो, मैं शेयर कर देता हूँ. ठीक है, अभी आप चेक कर सकते हो दैट मटेरियल इज देयर. हो गया कि नहीं? यस, इट इज देयर. आ रहा है ना आपको? देखो एक बार. हाँ सर, आ गया. ओके, आ गया सर. यस. या एनी अदर डाउट? Okay, so I will end this session. थैंक यू सर. Okay, thank you.